Hello students, I am Roshni Thawani and welcome to Business Studies class. So till now we have understood in forms of business organization the sole proprietorship, partnership, cooperative society and joint Hindu family business. And today we are starting with joint stock companies. I think it is a very important concept for your further chapters even. So listen it carefully and understand it carefully. If you don't understand, you can call me in the doubt solving session timings. Let's start the joint stock company. Joint stock companies are emerged to overcome the difficulties of sole proprietorship and partnership business organization and to run large scale business enterprise. Here we are going to solve what? Here we are going to solve the limitations of sole proprietorship and partnership firm. That means whatever the problems we are facing with the sole proprietorship and partnership, that we can recover in the company's firm. How? See, in sole proprietorship and in partnership, always we were facing problem of finance, which problem we are not facing in the company. But how we are not facing the problem in the company and how we are able to manage the fund, that we have to understand. So joint stock company, see here we have one definition has been given, but I am not going to explain that definition just because if I would be explaining it right now, you won't understand. So first I will want to explain you one thing, and that is the Companies Act 2013. Okay, there are different act, okay, which every time one has to follow. So for the company also we have one act, that is a Companies Act 2013. And this act is kind of a Bhagavad Gita for the companies, and we have to follow it blindly, right? So what is Companies Act 2013? That whatever the provisions and whatever the things have been specified over here, that one has to follow. That comes in Companies Act 2013. Now there were many different acts. The Indian Company Acts 1866, 1882, 1930 and 1956. But recently, which is on which we are following and which we are understanding the act, that is the Act 2013. Now features of joint stock company. Now let's understand first artificial person. अब यहाँ से हमको बहुत ध्यान से समझना है कि ये कंसेप्ट कहना क्या चाहता है. कहा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है. कि पर्सन तो है लेकिन आर्टिफिशियल क्यों? जैसे एक ह्यूमन बीइंग खा सकता है, लाइक वन पर्सन कैन ईट, वन पर्सन कैन ड्रिंक, ओके, कैन ब्रीथ. इन द सेम मैनर जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन नॉट ईट, ड्रिंक और ब्रीथ, right? What did they say? That companies are created by law and it exists independent of its members and it can own properties, borrow funds, enter into contract in its own name, but it's not a natural person. क्या कहा कि कंपनी एक पर्सन के जैसे ही है. जैसे पर्सन को सारे ही राइट्स मिलते हैं कि हमारे नाम पे हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हमारे नाम पे हम पैसे भी ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, हम एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, सब हमारे नाम पे. वैसे ही कंपनी के नाम पे भी कंपनी पैसे बोरो कर सकता है. जैसे कि XYZ कंपनी है, तो अगर कंपनी बोरो कर रहा है तो वो XYZ के नाम पे वो पैसे बोरो करेगा. अगर कंपनी प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है तो वो XYZ के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज़ होगा. अगर कंपनी कोई एग्रीमेंट में एंटर हो रहा है तो वो XYZ के नाम पे वो एंटर होगा. बट इट्स नॉट अ नेचुरल पर्सन, लेकिन वो नेचुरल पर्सन नहीं है. लेकिन जैसे ही जो भी राइट्स हमको लीगली जो भी राइट्स मिलते हैं, वो कंपनी को भी सारे ही राइट्स मिलते हैं. नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. Now what is a separate legal entity? That is, as the company's registered body, it is treated as a legal person and its assets and liabilities are separate from those of its owners. मतलब इसका मतलब क्या है कि कंपनी, अब देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ समझनी है. अब ध्यान से समझेंगे, ठीक है? मैं 2-3 बार रिपीट करूँगी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली. सो जस्ट अ मिनट. ओके, सी, अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बोलूँ कि कंपनी और उसके मेंबर्स, कि कंपनी में 1, 2, 3 ऐसे बहुत तरह के मेंबर्स हैं, लेकिन कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग बातें हैं. कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो कंपनी के नाम की है. जैसे मैंने आपको पहले कहा कि XY
जेड, ये कंपनी है, तो ये जो कंपनी होगी वो XYZ के नाम की होगी, ना कि वो किसी उसके ऑनर के नाम की होगी या उसके मेंबर के नाम की होगी। अब ऐसा क्यों? देखो, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि जैसे मैंने कोई बिजनेस मैं शुरू किया तो वो किसके नाम का है? तो मेरे नाम का है। पार्टनरशिप में भी वो किसके नाम का है? पार्टनर्स के नाम का है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में कंपनी अलग है और उसके ऑनर्स अलग हैं। अब वो क्यों अलग है वो आगे के कंसेप्ट है। अभी आपको ये समझना है कि कंपनी और उसके ऑनर्स वो दोनों अलग अलग हैं, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी परचेज हो रहा है वो कंपनी के नाम के परचेज हो रहा है, ना कि उसके कोई मेंबर्स या उसके कोई ऑनर्स के नाम का। अंडरस्टूड? तो इसीलिए कहा एज द कंपनी इज अ रजिस्टर्ड बॉडी इट इज़ ट्रीटेड एज अ लीगल पर्सन एंड इट्स असेट्स एंड लायबिलिटीज आर सेपरेट फ्रॉम दोज इट्स ऑनर्स। नाउ फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यानी कि कंपनी शुरू होना। तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस as it involves the preparation of several documents and the registration is compulsory under the Companies Act 2013 or any other previous company law। मतलब क्या है कि जो फॉर्मेशन है, जो कंपनी शुरू होती है, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। वाई इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस? बिकॉज उसमें बहुत सारा प्रिपरेशन चाहिए। इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जितना इजीली सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जितना इजीली स्टार्ट होता था, उतना कंपनी इजीली स्टार्ट नहीं होता है। उसमें बहुत तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, उसके वेरीफाई होते हैं, उसका परमिशन होता है, कई डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होते हैं। एंड फॉर ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट व्हाट वी हैव टू फॉलो? वी हैव टू फॉलो कंपनीज एक्ट 2013। नाउ नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। अब आपको समझना है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि जो कभी ख़त्म नहीं होता, यानी कि हमेशा रहता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी यही है कि वो हमेशा रहता है, इट नेवर एंड्स। जैसे कि अ कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैंस ओनली द लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। यानी कि क्या कंपनी शुरू करना कौन शुरू करता है? कंपनी शुरू भी लॉ के थ्रू होती है, ख़त्म भी लॉ के थ्रू होती है। मेरे या किसी और के मेंबर के चाहने से ना कंपनी शुरू होगी ना तो वो बंद होगी। उसको ख़त्म करने वाला भी उसका लॉ होता है, वही ख़त्म कर सकता है या बंद कर सकता है। दूसरा चीज़ कि कोई भी मेंबर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ स्पेसिफाई की है एंड दैट इज़ अ डेथ। जस्ट अ मिनट। डेथ, insanity, insolvency or lunacy of members। Okay, death, insolvency or lunacy of members does not affect the life of the company। यानी किसी का डेथ हो गया, किसी मेंबर का डेथ हो गया, insanity यानी कोई मेंबर पागल हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो भी वो कंपनी पे अफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि कंपनी तो भी चलती रहेगी, चाहे उसके मेंबर आए या चाहे जाए। अब यहाँ पे डेथ हमको पता है, ल्यूनेटिक मतलब पागल हो जाना, और यहाँ पे एक वर्ड है इंसॉल्वेंसी। अब इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है वो हम समझेंगे। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा पर्सन कि कि जिस पे बहुत सारा डेप्ट चढ़ गया है। अब उसका डेप्ट इतना चढ़ गया कि उसके प्रॉपर्टी सेल करने के बाद भी, आई रिपीट, उसके प्रॉपर्टी सेल हो गए, उसके बाद भी उस पर डेप्ट चढ़ा हुआ है। नाउ दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू रीपे दैट डेप्ट। अब नाउ इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू रीपे दैट डेप्ट, ओके, सो वो कोर्ट में एक डिक्लेरेशन देता है कि भाई मैं ये डेप्ट पे नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कीजिए। तो अब आप सोचेंगे कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर मतलब उसको बाद में डेप्ट पे नहीं करना है। आप सोचेंगे हर कोई बंदा ऐसे ही करेगा, पर यहाँ पे एक लिमिटेशन ये है कि जब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है वो लाइफ टाइम कभी भी लोन नहीं ले सकता। अगेन इफ़ ही वांट्स टू स्टार्ट अ कंपनी ही कैन नॉट स्टार्ट इट, राइट। तो वो पूरा उस पर अफेक्ट करता है। इसीलिए क्या कहा कि चाहे कोई पर्सन निकल जाता है, चाहे वो डेथ की वजह से निकल रहा है या कोई और रीज़न्स की वजह से निकल रहा है, वो निकल रहा है और उसके बाद भी कंपनी तो चलती ही रहेगी, यानी उसका परपेचुअल सक्सेशन है, वो कभी बंद नहीं होती है। उसके बाद है कंट्रोल।
क्या कहा? द ऑनर्स ऑफ अ कंपनी आर द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स वेयर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है, तो प्लीज़ ध्यान से समझिए कि कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी, उसका जो भी उसका जो भी कंट्रोल है, उसका जो भी कंट्रोल है वो सब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू है। जैसे मैंने अभी कहा कि जो भी कंट्रोल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर दोज हु आर टेकिंग द डिसीजन इन द कंपनी। कंट्रोल मतलब वो कंट्रोल नहीं करते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ पे आपको 3 एस्पेक्ट समझने हैं। एक कि सबसे पहला हम समझेंगे कंपनी, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कहा कि कंपनी, जस्ट अ मिनट, ये कंपनी है, ठीक है। अब ये इसके शेयर होल्डर्स हैं। अब आपको समझना है कि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कंपनी शुरू करने के लिए कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। मैंने जैसे ही कहा कि कंपनी में फ़ंड का प्रॉब्लम क्यों नहीं होता है, कि कंपनी शुरू करने के लिए कंपनी के पास क्या होना चाहिए, फ़ंड होना चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक के पास से पैसे लेती है, ठीक है। जैसे XYZ कंपनी है, उसको पैसे चाहिए तो वो पब्लिक के पास से पैसे लेगी, तो पब्लिक कंपनी को पैसे देगी। अब आप सोचेंगे कि पब्लिक कंपनी को पैसे क्यों देगी, तो उसके बिहाफ पे कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक को, कंपनी पब्लिक को शेयर्स देती है, राइट। इसीलिए जो पैसे देते हैं कंपनी को उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे पैसे कौन दे रहा है, शेयर होल्डर्स। अब हमने पढ़ा है जो पैसे बिजनेस में ले आता है वो रियल ओनर होता है, ओके। तो यहाँ पे कंपनी अलग है, उसके ऑनर्स अलग है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग है। तो हम ये 3 पॉइंट समझेंगे। कंपनी के शेयर, जो रियल ऑनर्स है वो कौन है, शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो कुछ डिसीजन शेयर होल्डर्स को पूछ के भी लिए जाते हैं, और जो डे टू डे डिसीजंस है वो कौन लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं इन द मीटिंग, ओके। तो पढ़ते हैं, द ऑनर्स ऑफ अ कंपनी आर द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स वेयर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर। यानी कि जो मैनेजमेंट है या डे टू डे कंट्रोल है वो कौन करता है, डायरेक्टर। यहाँ क्योंकि शेयर होल्डर्स तो बहुत सारे होते हैं, पूरे इंडिया में बहुत सारे उस कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, तो हर चीज़ में हर एक शेयर होल्डर से तो नहीं पूछने जाएंगे। तो यहाँ पे किसको बिठाया जाता है, डायरेक्टर्स को। और ये डायरेक्टर्स भी कौन इलेक्ट करता है, शेयर होल्डर्स। हर साल कंपनी के शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है। अब वो हर साल बुलाया जाता है, वो उसकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं AGM। उस AGM में सारे ही शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है और उनके सामने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, ओके। सो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इस वे में चलता है कंपनी का। नेक्स्ट इज़ अ लायबिलिटी। अगेन ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम समझेंगे। लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ओनली। द मेंबर्स कैन बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द लॉस ओनली इफ एनी अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम। इन शॉर्ट, देखो अब ये अगेन ये ध्यान से समझो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में नुकसान हुआ था, तो वो नुकसान कौन उठा रहा था, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में उसका ऑनर। पार्टनरशिप में अगर कुछ नुकसान हुआ यानी लायबिलिटी अराइज हुआ, डेप्ट अराइज हुआ, तो उसका वो डेप्ट कौन उठाता था, तो कहा पार्टनर्स उठाते थे। लेकिन क्या यहाँ पे कंपनी में डेप्ट अराइज होगा तो शेयर होल्डर्स लायबल हैं, क्योंकि हमने आगे के पॉइंट में तो पढ़ा कि शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो क्या शेयर होल्डर्स को डेप्ट पे करना पड़ेगा, क्या शेयर होल्डर्स को अपना प्रॉपर्टी सेल करके वो डेप्ट पे करना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो शेयर होल्डर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही है कि सपोज़ एक शेयर उसने 100 रुपीज़ का लिया है, 100 रुपीज़ का, तो उसको अपने वो 100 रुपीज़ वो पे कर दे, उतना ही उसका लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट द पर्सन हैज़ टू पे 100 रुपीज़। अब कंपनी पे डेप्ट चढ़ गया तो उसमें शेयर होल्डर से मांगने नहीं जाना है। शेयर होल्डर भले ही ऑनर है लेकिन वो अपने शेयर के अमाउंट के साथ कंसर्न है, उसके अलावा वो कोई अमाउंट के साथ कंसर्न नहीं है। दैट्स वाई दे हैव सेड द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ओनली।
यानी कि जितना उसने शेयर परचेस किया है उतना ही उसको पैसा भरना है, उससे ज़्यादा नहीं भरना है। फिर आगे क्या कहा, द मेंबर्स कैन बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द लॉस ओनली इफ एनी अनपेड अमाउंट ऑन शेयर हेल्ड बाय देम। अगर किसी शेयर होल्डर ने 100 रुपीज़ का शेयर है, उसमें से उसने 50 ही पे किया है, तो कंपनी उससे बोल सकती है कि भाई तुम्हारे 50 रुपीज़ जो बाकी है वो तुम पे करो, ठीक है, वो बोल सकती है। उसके अलावा कैन नॉट आस्क एनी थिंग। नेक्स्ट, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है स्टैम्प। A company may or may not have a common seal as it is an artificial person. It cannot sign documents. Therefore, a common seal is used for its signature. ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि कंपनी तो पर्सन है, अब ये तो आर्टिफिशियल है, अब ये सिग्नेचर कैसा करेगा? तो यहाँ पे सिग्नेचर नहीं होता है, यहाँ पे इसका ये जो स्टैम्प है कॉमन सील, ठीक है, वो चलता है। नेक्स्ट इज अ रिस्क बेयरिंग। The risk of loss in a company is borne by all the shareholders so that it will not become a heavy burden to them. मतलब रिस्क कौन करेगा? शेयर होल्डर्स, यानी कि वो अपने पैसे देते हैं तो उससे शेयर के पैसे देते हैं तो उससे कंपनी अपना रिस्क अपना भरपाई कर सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कहीं भी कि शेयर होल्डर को अपना प्रॉपर्टी सेल करके भी उसको डेप्ट रिकवर करना है। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। टोटल हमने 8 पॉइंट पढ़े। कंपनी देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे फाइनेंस के चैप्टर्स भी आएंगे, तो वहाँ अगर आपका कंपनी का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको फाइनेंस समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे डाउट सॉल्विंग सेशन में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो वेट टिल माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।